Good morning, students. Today we are going to study our next topic, that is dipole moment. Dipole moment is again very important topic and it is represented by the symbol mu. Okay. Dipole moment basically we use to determine whether our covalent molecule is polar or non-polar. ठीक है, डाइपोल मोमेंट हमें पोलैरिटी के बारे में एक्सप्लेन करेगा और जितना ज्यादा कंपाउंड पोलर होगा उतना ही ज्यादा उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा. तो डाइपोल मोमेंट इनडायरेक्टली टेल्स अस अबाउट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ कोवेलेंट कंपाउंड. इज इट क्लियर? सो इन केस ऑफ अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वी नो पोलर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन two atoms having different electronegativity value. Like in case of HCl, hydrogen is less electronegative than chlorine. So the element which has more electronegative value has tendency to attract shared pair of electron towards itself. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड बिकॉज ऑफ attraction it carry delta negative charge and the electropositive element carry delta positive charge. ठीक है, so in case of polar covalent compound there is charge separation. तो अगर हम जनरल बात करें, if in case of AB molecule A is less electronegative than B, अगर A less electronegative है तो A carry delta positive charge and B carry delta नेगेटिव चार्ज. ठीक है, और चार्ज को हम Q प्लस Q और माइनस Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जितनी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपने उतने ही तो इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने दे रहा है. तो जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा. जस्ट साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिमेन सेम. तो if electropositive carry plus Q charge, then the electronegative carry minus Q charge, and the internuclear distance between two atoms is known as their bond length, which is represented by D. ठीक है, दो जो polar covalent bonded atoms है उनके बीच में जो internuclear distance है that is known as their bond length. तो यहाँ पे अब जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट म्यू is the product of magnitude of charge present over the atoms to their internuclear distance. That is known as dipole moment. So dipole moment. So dipole moment is the product of magnitude of charge present on atoms and the distance between the center of nuclei of पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू आयन्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का प्रोडक्ट लेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बिकॉज चार्ज प्रेजेंट ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमेन सेम, जस्ट उनका साइन चेंज होगा. तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज करेंगे. इज इट क्लियर? Unit of dipole moment. Dipole moment is a product of charge and distance. तो अगर हम ऐसा यूनिट देखें, we know ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम and distance meter. So unit of dipole moment become coulomb meter. ठीक है, and in terms of CGS system,
CGS system में charge is expressed in ESU unit and distance is represented in centimeter. So unit become ESU centimeter. ठीक है, here cm is coulomb meter, not centimeter. It represent coulomb meter. Is it clear? So here when we express the dipole moment in CGS system, then generally the value of charge is expressed in 10 raised to power minus 10 ESU and distance between the two ions is taken as 10 raised to power minus 8 centimeter. So mu become 10 raised to power minus 10 ESU into 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर. बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो न्यू बिकम 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर. एंड दिस वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नोन एज dBi. That is 1 dBi. So dipole moment is also expressed in unit dBi, and 1 dBi, value of 1 dBi is taken when charge is 10 raised to power minus 10 ESU and the internuclear distance between the two ions is taken as 10 raised to power minus 8 centimeter. So the value of 1 dBi in terms of ESU centimeter, it become 10 raised to power minus 18 centimeter. Is it clear? And in terms of coulomb meter, we know that 4.8 into 10 raised to power minus 10 ESU is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. From here, the value of 1 ESU is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 divided by 4.8 into 10 raised to power minus 10 coulomb, which is approximately equal to 3.335 into 10 raised to power minus 10 coulomb. So 1 ESU is equal to 3.335 into 10 raised to power minus 10 coulomb, and we know 1 centimeter is equal to 10 raised to power minus 2 मीटर. तो जब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, सो 1 dBi इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट इट बिकम 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 इंटू 3.335 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर. सो हेयर बेस सेम है, 10 की पावर्स में सब में बेस 10, तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी. सो 1 dBi is equal to 3.335 into 10 raised to power minus 30 coulomb meter. Is it clear? So the unit of dipole moment is dBi. dBi, which is also written as capital D. And in terms of SI system, 1 dBi is equal to 3.335 into 10 raised to power minus 30 coulomb meter, and in CGS system 1 dBi is equal to 10 raised to power minus 18 ESU centimeter. Is it clear? Now next important thing about dipole moment, that dipole moment is a vector quantity. Dipole moment is a vector quantity which depend upon the magnitude as well as direction. ये जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी. तो हमें पता है डाइपोल मोमेंट पोलर कोवलेंट बॉन्ड के केस में अगर आप कैलकुलेट करते हो, then in case of polar covalent bond, electropositive element carry
plus Q charge and electronegative element carry minus Q charge. So the direction of dipole moment is always from positive to negative charge, or we can say that direction is always from less electronegative to more electronegative element. ठीक है, less electronegative always carry positive charge and the more electronegative element always carry negative charge. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. हेड ऑफ द एरो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ रहेगा एंड टेल ऑफ द एरो इज ऑलवेज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट एंड molecular structure. Now we calculate the dipole moment of different covalently bonded molecule. So first is diatomic molecules. Diatomic molecule which contain only two atoms like A and B. अब दो ही एटम है तो दे कंटेन ओनली वन कोवलेंट बॉन्ड. तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट होगी दैट इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट बॉन्ड ओनली. ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल dipole moment of diatomic molecule is equal to the dipole moment of bond between the two atoms. और जब हम इस बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वी नो दैट वन atom is less electronegative and another is more electronegative, and the direction of dipole moment is always from less to more electronegative. So the dipole moment of diatomic molecule nu is equal to Q into D. तो इस बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट आएगी वही डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ HF, तो HF मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट ऑफ HF मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम. एक ही बॉन्ड है तो जो उसके बीच में डिस्टेंस और चार्ज होंगे उसी की इक्वल डाइपोल मोमेंट आएगी. सो हियर इफ वी कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI, इन चारों में से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी हाई होनी चाहिए? सब में हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है एंड वी नो दैट हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन. सो इन ऑल द केसेस हेलोजन कैरी डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. Now if we check the electronegativity of halogen, we know that electronegativity value decreases down the group. तो electronegativity value फ्लोरीन की सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. अब जितना ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. जितना इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा चार्ज सेपरेशन उतनी ज्यादा मैक्सिमम होगी. तो आउट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है, इन चारों में चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में होगी. क्लियर है? सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेस पे न्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी. तो जितना ज्यादा चार्ज आएगा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा हाई होनी चाहिए. तो चार्ज सेपरेशन HF के केस में मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन फ्लोराइड की मैक्सिमम होगी. बट यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है. और वी नो दैट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एटम. तो सब में हाइड्रोजन का साइज तो सेम है बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज. तो अगर हम डिस्टेंस के बेस पे देखें तो आयोडीन के केस में सबसे ज्यादा लार्ज साइज होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन और फ्लोरीन का सबसे कम. तो दोनों ऑर्डर अपोजिट है. तो अगर इस टाइप से कोई भी केस आए कंपेयर करना जिसमें चार्ज और
बॉन्ड लेंथ अपोजिट आ रहे हो, तो वहां पे जो प्रोमिनेंट फैक्टर होता है दैट इज चार्ज। तो वहां पे जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो हम बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आउट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी फ्लोराइड के केस में, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ polyatomic molecule. Polyatomic molecule which contain more than 2 atoms. अगर 3 एलिमेंट्स हैं, AB2 टाइप, AB3, AB4, पॉलीएटॉमिक के केस में फर्दर, नाउ द कोवलेंट मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन 1 कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे एक से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड आ गया, तो हम डाइपोल मोमेंट अलग अलग बॉन्ड की कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद दोनों बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट का सम करके देन वी कैलकुलेट द नेट डाइपोल मोमेंट। तो इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट of molecule is equal to net dipole moment of each bond। ठीक है, हर एक बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट के सम के इक्वल होगा। उसमें वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का भी मेन रोल होगा। ठीक है, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हम म्यू की वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो जब भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस आए, सो फर्स्टली यू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, लुईस थ्योरी के बेस पे भी, वेस्पर थ्योरी के बेस पे भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वी नो दैट कार्बन present in the center and form double bond with both the oxygen atoms। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अगर हम सिंगल सिंगल बॉन्ड की कैलकुलेट करते हैं, अब कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड बने हैं। ठीक है, और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा। अब out of carbon and oxygen, oxygen is more electronegative, दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऑक्सीजन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो द चार्ज प्रेजेंट ओवर कार्बन इज +2 डेल्टा। ठीक है, इस ऑक्सीजन की वजह से प्लस डेल्टा, इस ऑक्सीजन की वजह से भी प्लस डेल्टा चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज ओवर carbon is +2 delta. Now when we check the direction of dipole moment, dipole moment की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी। सो फॉर फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। सेकेंड के लिए अगर हम करेंगे, सेकेंड में भी कार्बन टू ऑक्सीजन। अब जब आप डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, न्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। हमें पता है दोनों ही एलिमेंट सेम है, कार्बन ऑक्सीजन, इस वाले बॉन्ड में भी कार्बन ऑक्सीजन, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहेगा, सेम एलिमेंट है, चार्ज भी सेम रहेगा दोनों ही बॉन्ड पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट रिमेन सेम फॉर बोथ द बॉन्ड। जो फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वही सेकेंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि दोनों के लिए कंडीशन बिल्कुल इक्वल है। बट अब उनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट आई है। अगर एक बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो सेकंड में वही राइट हैंड साइड पे है। मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट बिकम 0। ठीक है, क्लियर है? सो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ओवरऑल डाइपोल मोमेंट
0। और अब यहाँ पे जो मेन आपका आएगा दैट इफ डाइपोल मोमेंट, अब हमने स्टार्टिंग में किया था कि डाइपोल मोमेंट टेल्स अस वेदर द कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर। तो अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू या तो आपकी 0 के इक्वल आएगी, आइदर नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डाइपोल मोमेंट 0 आ रही है दैट मीन्स कंपाउंड इज नॉन पोलर। उस केस में पोलैरिटी 0 है तो कंपाउंड ओवरऑल मॉलिक्यूल बिकम नॉन पोलर। और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो सो आवर मॉलिक्यूल बिकम पोलर मॉलिक्यूल। तो जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगी उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल पोलर होगा, उतना ही उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है लाइक इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल वी नो दैट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, बट ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल become non-polar. Why? And because in case of carbon dioxide molecule, the carbon oxygen, the two carbon oxygen bonds are formed in opposite direction. So their net dipole moment become cancel out and value of dipole moment is equal to 0. So overall molecule is non-polar. Clear है? तो अब आपने वेस्पर थ्योरी में जब हमने स्ट्रक्चर्स की थी, स्ट्रक्चर हमारी दो टाइप की थी, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हमारी कब थी? इफ द सेंट्रल एलिमेंट सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एंड विथ बॉन्ड पेयर ओनली। ठीक है, अगर सेंट्रल एलिमेंट सिर्फ बॉन्ड पेयर से ही सराउंड कर रहा है और सारे के सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है, अगर सारे बी ही हैं तो उसमें जितने भी बॉन्ड बनेंगे सब में डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। इक्वल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो जितनी अबव द प्लेन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उतना ही बिलो द प्लेन भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सो ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज 0 and the symmetrical molecule is always non-polar by nature. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ BF3 की स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो, इलेक्ट्रॉन पेयर इज हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएंगे 2 3 प्लस 3 फ्लोरीन से सराउंडेड है, 3 मोनोवेलेंट एटम, सो इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम 3। बोरोन इज सराउंडेड बाय 3 मोनोवेलेंट एटम दैट इज फ्लोरीन, तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 3, तो लोन पेयर 0 है, तो शेप बिकम ट्रायंगुलर प्लेनर। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल बॉन्ड काउंट करो, BF बॉन्ड, ठीक है, BF3 मॉलिक्यूल कंटेन 3 BF बॉन्ड। अब BF बॉन्ड इटसेल्फ इज अ पोलर बॉन्ड। BF बॉन्ड में बोरोन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगी। अब तीनों ही BF बॉन्ड के केस में डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि चार्ज सेम आएगा। बोरोन इज सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, तो सब पे चार्ज भी सेम होगा और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी सेम होगा, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। नाउ यू जस्ट हैव टू चेक द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। तो फर्स्ट बॉन्ड की डायरेक्शन बोरोन टू फ्लोरीन अवर डायरेक्शन में है, 2 बॉन्ड आपके इस टाइप से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2 बॉन्ड आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहां पे हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे आप मैथ्स में वेक्टर क्वांटिटी के केस में रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना, यहां से हम इसका रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्टेंट
डाइपोल मोमेंट आएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है और दो बॉन्ड का रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट हो जाएगी एंड म्यू बिकम 0। इज इट क्लियर? तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज नॉन पोलर बाय नेचर। सिमिलरली इन केस ऑफ CCl4, CCl4 में स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आएंगे यहाँ पे अगर आप काउंट करते हो। तो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, नाउ CCl4 कंटेन 4 कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, चारों बॉन्ड सेम है तो सबका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इक्वल आएगी। नाउ डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड आपको देखना है, बॉन्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। तो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन, सब में कार्बन टू क्लोरीन। अब यहाँ पे एक बॉन्ड आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, 3 बॉन्ड आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इनका जब आप नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। तो यहां से नाउ बोथ द डायरेक्शंस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट डाइपोल मोमेंट बिकम 0। सो CCl4 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक बॉन्ड आपका पोलर है बट ओवरऑल मॉलिक्यूल बिकम नॉन पोलर एंड इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे CCl4 की जगह हमारा मॉलिक्यूल हो CHCl3, ठीक है। अब नाउ सेंट्रल एलिमेंट इज नॉट सराउंडेड बाय ऑल द सेम एलिमेंट। ठीक है, अब सारे सेम एलिमेंट से सराउंडेड नहीं है, एक एलिमेंट हमारा डिफर हो गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में डायरेक्शन कहां से कहां तक आएगी? आउट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन। ठीक है, तो अब इसमें इस बॉन्ड की डायरेक्शन भी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नाउ बोथ द डाइपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में तो वैल्यू ऐड होगी तो न्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो CHCl3 मॉलिक्यूल बिकम नॉन पोलर। इज इट क्लियर? अब अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी प्रेजेंट है, सो डाइपोल मोमेंट में अगर एटम इज ऑल्सो सराउंडेड बाय अ लोन पेयर, तो लोन पेयर हमेशा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंसिडर करेंगे। तो जब भी लोन पेयर होगा तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द एलिमेंट टू लोन पेयर। जब भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एरो हमेशा लोन पेयर, हेड ऑफ द एरो हमेशा लोन पेयर के टुवर्ड्स होगा। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना। तो लाइक इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया में अगर आप इलेक्ट्रॉन, इफ यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अमोनिया, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 5 प्लस 3 मोनोवेलेंट एटम 4, बॉन्ड पेयर 3 मोनोवेलेंट एटम है 3, लोन पेयर बिकम 1. So ammonia contain 3 bond pair and 1 lone pair. So the structure of ammonia become pyramidal. तो यहाँ से अगर आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हो, इट कंटेन 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर. So direction of dipole moment in case of NH bond is from hydrogen to nitrogen. Less electronegative element is hydrogen and more electronegative element is nitrogen. और नाइट्रोजन और लोन पेयर में से डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स लोन पेयर. तो यहाँ पे अब देखो इन तीनों बॉन्ड की डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और लोन पेयर के लिए भी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है.
सो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगी. सो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अमोनिया मोलिक्यूल बिकम पोलर मोलिक्यूल. क्लियर है ये? Now if we have to compare the dipole moment of ammonia with NF3 molecule, NF3 में भी सेम ही स्ट्रक्चर आएगी. अब यहाँ पे अगर हम चार्ज के बेस पे करें, नाउ वी नो दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज सेपरेशन नाइट्रोजन फ्लोरीन के केस में मैक्सिमम होनी चाहिए. सो ऑन द बेस ऑफ चार्ज सेपरेशन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट NF3 की ज्यादा होनी चाहिए. बट व्हेन वी चेक द नेट डाइपोल मोमेंट, now we know that nitrogen and out of nitrogen and fluorine, nitrogen is less electronegative than fluorine, so direction of dipole moment is from nitrogen to fluorine. और नाइट्रोजन और लोन पेयर में नाइट्रोजन टू लोन पेयर. यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है. अपोजिट डायरेक्शन में तो वैल्यू कैंसल आउट होगी, बट एग्जैक्टली आप 0 नहीं बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है इधर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है इट इज ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन बॉन्ड, और अपवर्ड डायरेक्शन में नाइट्रोजन और लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट है. तो दोनों पे चार्ज और डिस्टेंस डिफरेंट होगा तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल नहीं होगा. तो NF3 मॉलिक्यूल के केस में डाइपोल मोमेंट आती है दैट इज अराउंड 0.24 dBi, एंड इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इट इज 1.47 dBi. It is because of addition, and NF3 dipole moment is because of subtraction. So when we compare the dipole moment of ammonia and nitrogen trifluoride, dipole moment of ammonia is maximum. Is it clear? So this is about dipole moment. Next is application of dipole moment, which we study in our next lecture. Is it clear? So thank you and have a nice day.